Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our next poem. The name of the poem is A Tiger in the Zoo, okay? And this poem is written by Mr. Leslie Norris. So he is the poet of this poem. So the name, A Tiger in the Zoo. So while reading the name, we all can get an idea about the poem. So this poem is about a tiger that is in the zoo, okay? And now we all know tiger is a wild animal, okay? He is born to live freely in the jungle, right? But here we will see a tiger that is kept in the zoo. So आप सबने भी देखा ना, जब आप जू में जाते हो तो जू में आपने देखा होगा बड़े बड़े केजेस बने हुए होते हैं, उन केज के अंदर टाइगर्स को रखा जाता है. लेकिन टाइगर वैसे क्या होते हैं, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, है ना. और उनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, उनका नेचुरल घर क्या होता है, वो होता है फॉरेस्ट or we can say jungle, okay? But we human being, just for our fun, just for our entertainment, what did we do? We snatched their freedoms and we forced, okay, we forced the tigers to live in the cage, to live in the zoo only, okay? So here in the poem the poet presented a contrast, okay? We will see a contrast in the life of tiger, that when a tiger is free, he lives freely his life in the jungle, in the forest, then what are his natural behaviors or what are his lifestyle, okay? And on the other side, if the same tiger is kept in the zoo, okay, he is forced to live his life in the zoo, then what changes are there in his natural behavior, what changes we can see in his lifestyle, okay? So we human beings, we just for our fun, just for our entertainment, we snatch their freedom and we force tigers to live in the zoo, okay? But इसकी वजह से क्या होता है, हम टाइगर्स को ना ज़बरदस्ती फोर्स कर देते हैं कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के वो जू में रहें, और ये करना बहुत गलत है, क्योंकि जो फ्रीडम होती है दैट इज़ अ बेसिक राइट फॉर ऑल द क्रिएचर्स, एज फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज ऑल द क्रिएचर्स और एनिमल्स. तो सभी के लिए जो फ्रीडम होती है वो एक बेसिक राइट होती है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी वंस लाइफ. सो टाइगर को भी हमें फ्री छोड़ना चाहिए, उन्हें जंगल में रहने देना चाहिए. लेकिन हम उन्हें जब जू में लेके आते हैं, हम उन्हें जब केज में बंद करके रख देते हैं, तो टाइगर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनकी लाइफ कैसी हो जाती है, उनका जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो भी हम चेंज कर देते हैं. तो इसी बारे में ये पोएम है, दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. सो इट्स अ वेरी सिंपल पोएम, वेरी इजी पोएम, बट इट इज़ हैविंग अ वेरी ग्रेट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द पोएम. So this poem is written in 5 stanzas. Now we all know about this stanza. So this is the first stanza of the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rays. Okay, so this is the first stanza of the poem. In this stanza we will see a tiger that is kept in the zoo. Okay, so the poet is saying that he stalks. What is stalks? Stalks means to walk, and here he is used for the tiger. Okay, so the poet is saying that the tiger that is there in the cage, that is there in the zoo. So the tiger is what is he doing? He walks in his vivid stripes. What is vivid stripes? Stripes हम सबको पता है, जो टाइगर होता है उसकी बॉडी पे आप सबको पता है ये ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होती हैं, राइट? और विविड मीन्स वेरी डीप और ब्राइट कलर. तो उसकी जो स्ट्राइप्स होती हैं, इनका कलर कैसा होता है? वेरी ब्राइट, वेरी डीप कलर की स्ट्राइप्स होती हैं. तो इस तरह से टाइगर की बॉडी होती है. सो द पोएट इज सेइंग दैट द टाइगर दैट इज kept in the zoo, that is there in the cage, the tiger walks in his vivid stripes the few steps. और वो जो टाइगर है वो वॉक तो करता है, लेकिन वो कितनी वॉक कर पाता है? वो ओनली फ्यू स्टेप्स ही चल पाता है. क्यों? बिकॉज इन द केज ही हैज़ लिमिटेड एरिया टू वॉक ओनली, राइट? उसके पास सिर्फ थोड़ी सी जगह है, लिमिटेड जगह है मूव करने के लिए, इसीलिए वो अपने केज में वॉक तो करता है, बट ही कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स, राइट? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अब जब वो टाइगर जब वॉक कर रहा है, वो चल रहा है, तो उसके चलने से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती, वो किसी भी तरह की नॉइज़ नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसके जो पैड्स हैं, पैड्स क्या होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, टाइगर के जो पैर होते हैं ये नीचे से जो होते हैं इनको कहते हैं पैड्स. तो टाइगर के जो पैर होते हैं ये कैसे होते हैं? बिल्कुल वेलवेट
की तरह होते हैं. Now what is velvet? We all know velvet is a fabric that is very soft. Okay, so यहाँ पे poet क्या कह रहे हैं? The poet is saying that the pads of tigers are as soft as the velvet. That's why when he walks he makes no noise. Okay, तो इसीलिए जब वो टाइगर चलता है तो उसके चलने से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पैर हैं वो उतने सॉफ्ट हैं जितने सॉफ्ट की वेलवेट होता है. तो वेलवेट की तरह उसके सॉफ्ट पैड्स हैं, इसीलिए उसके चलते समय बिल्कुल भी वो आवाज़ नहीं करता है. इन हिज क्वाइट रेज, अब वो चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है केज के अंदर, और उस समय टाइगर कैसा है? उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेज है. रेज मीन्स एंगर, तो टाइगर के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है. वाई इज ही एंग्री? ही इज एंग्री बिकॉज ही इज फोर्स्ड टू लिव इन द केज. हिज फ्रीडम इज नॉट देयर विथ हिम. ही इज नॉट फ्री, ही इज अ प्रिजनर. ओके, तो उसको वहाँ पे केज के अंदर बंद कर दिया गया है, इसीलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है. लेकिन उसका एंगर कैसा है? क्वाइट है. वो अपना एंगर शो नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता. ऐसा नहीं कि वो गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, या फिर किसी तरह की वहाँ पे वो मूवमेंट्स कर रहा है. उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा एंगर है, लेकिन वो अपने एंगर को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा. इसलिए वो बाहर से कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा क्वाइट लग रहा है. ही इज़ टोटली कूल एंड काम. ओके, लेकिन हार्ट में अंदर से उसके बहुत ज़्यादा एंगर भरा हुआ है. वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, वो अपसेट है कि उसको वहाँ उसके नेचुरल हैबिटेट जो फॉरेस्ट था वहाँ से उसको उठा के यहाँ जंगल, यहाँ इस केज के अंदर बंद कर दिया है, इस पिंजरे में कैद कर दिया है, और उसको ऐसा लग रहा है उसकी फ्रीडम उससे ले ली गई है और उसे एज ए प्रिजनर यहाँ पे बंद कर दिया गया है. इसी रीजन से उसके मन में बहुत ज़्यादा एंगर है, बट ही इज़ नॉट शोइंग ऑफ हिज एंगर and he is looking very calm and cool, or we can say he is very quiet. Okay, so this is the first stanza of the poem, and in this stanza the poet is describing about a tiger that is there in the zoo, or we can say that is there, that he is locked in a cage. Okay, so one more time we will see the explanation. So the poet is saying that he means the tiger walks. Okay, stalk means to walk. So the poet is saying that the tiger is walking in his cage with his white stripe, the beautiful stripes, or we can say the bright color, the deep color stripes that are there on his body. So he's moving with his stripes, but he can move only a few steps. Why? Because he has only a limited area with him to move. He is not in the jungle. Okay, he is in the cage, so he has only a limited area, so he is walking, but he can walk only a few steps, right? And when he walks he makes no noise, because the pads of the tiger are very soft, just like as of we can say just like of velvet. That's why when he moves he makes no noise, and there is anger in his heart, a very deep anger is there in his heart, but he is not showing, he is not expressing his real emotions, and he is looking very quiet, he is looking very calm. राइट, सो यहाँ पे हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख सकते हैं. जैसा हमने पहले भी पोएम में हमने पढ़ा है कि जब हम पोएम पढ़ते हैं, सो वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन द पोएम. ओके, सो हियर इन द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द राइम स्कीम. सो राइम स्कीम अगर हम देखें, सो आर फर्स्ट वर्ड इज स्ट्राइप, सो वी विल मार्क स्ट्राइप्स एज ए, राइट? द साउंड ऑफ स्ट्राइप इज ए. सेकेंड इज केस, सो स्ट्राइप्स एंड केस, आर दे हैविंग सिमिलर साउंड? स्ट्राइप्स, केस, डेफिनेटली नो, सो वी विल मार्क केस एज बी, राइट? नेक्स्ट इज क्वाइट, सो फर्स्ट चेक विथ ए साउंड, स्ट्राइप्स एंड क्वाइट, आर दे हैविंग सिमिलर साउंड? स्ट्राइप्स, क्वाइट, नो. लेट्स चेक विथ बी, case and quiet. Case, quiet, no, it's a new sound, so we will mark quiet as C, right? Next is raise, so raise and case, raise, case, yes, they are similar, so we will mark raise as B, just like case, because they are similar sound, case and raise. So the rhyme scheme of the first stanza is A B C B. और हमें ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो पूरी पोएम है, और थ्रू आउट द पोएम ऑल द 5 स्टेंजा द सेम राइम स्कीम विल कंटिन्यू. सभी स्टेंजा में यही राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, सभी स्टेंजास के यही राइम स्कीम है, दैट इज ए बी सी बी. ओके, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म दैट वी कैन से हियर इज, ओके, हियर इन द फर्स्ट लाइन, इन हिज vivid
स्ट्राइप्स, लुक एट दीज 4 वर्ड्स, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमें पता है व्हाट आर वोवेल्स एंड व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो जब भी किसी वोवेल साउंड की प्रोमिनेंस होती है, जब किसी वोवेल साउंड को बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में, सो वो एक लिटरेट डिवाइस बनती है, उसको कहते हैं एसोनेंस। So this is the use of assonance in the first line where the vowel sound I. I is prominent sound here in the first line. We can see in his vivid stripes. Okay, so the prominence of I sound, and I is a vowel, so the prominence of one vowel sound is can be seen in the first line. So here is the use of assonance is there in the first sentence of the poem. Okay, another literary device that is used in this stanza is, okay, look here, velvet quiet. This line, on pads of velvet quiet. So in this line the poet is comparing, okay, he is comparing the pads of a tiger with the fabric velvet, because both the velvet and the pads of the tiger, they are having one quality, one similar quality. And what is that quality that is there in both the pads of the tiger and in the velvet? That quality is of being soft. Okay, तो poet ने क्या किया है, टाइगर के पैड्स को कंपेयर किया है किसके साथ, वेलवेट के साथ। क्यों, क्योंकि दोनों में ही एक कॉमन क्वालिटी है, और वो क्वालिटी क्या है, सॉफ्टनेस की। तो पॉइंट ने क्या कहा है कि जो टाइगर के पैड्स हैं वो उतने ही सॉफ्ट हैं जितना कि वेलवेट होता है, वेलवेट की तरह वो सॉफ्ट है। सो ही इज कंपेयरिंग, ओके, कंपेरिजन उन्होंने दिया है, और इस कंपेरिजन में उन्होंने लाइक या एज का यूज नहीं किया है। सो जब इस तरह का कोई कंपेरिजन किया जाता है पोइट्री में जहाँ लाइक और एज यूज नहीं किया जाता, तो वो एक लिटरेरी डिवाइस बनता है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। तो इस लाइन में हम देख सकते हैं मेटाफर का यूज किया गया है, जहां पॉइट ने कंपेयर किया है टाइगर के पैड्स को वेलवेट के साथ। और कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि दोनों में एक सिमिलर क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है सॉफ्टनेस की। ओके, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, वन मोर डिवाइस इज हियर दैट वी कैन सी, लुक एट दीज 2 वर्ड्स, क्वाइट एंड रेज। ओके, व्हाट इज रेज? रेज मीन्स एंगर एंड क्वाइट मीन्स टू बी काम और कूल। तो ये दोनों ही वर्ड्स क्या हैं, ये दोनों ही वर्ड्स जो है ये इमोशंस को, फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, और ये दोनों ही फीलिंग्स कैसी हैं, आपस में ऑपोजिट है, राइट। एक तरफ हम कह रहे हैं गुस्सा, तो जो गुस्सा है, एंगर है, वो जस्ट ऑपोजिट होता है किससे, कूल, काम या क्वाइट से। तो दोनों ही जस्ट ऑपोजिट वर्ड हैं। सो जब पोइट्री में दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए जाते हैं तो वो भी एक लिटरेरी डिवाइस होता है, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन। So oxymoron can be seen here in this line when the poet used quiet and raise, two opposite words together. So here we can see the use of oxymoron, okay, because quiet and raise, they are just opposite feelings. Rage means anger and quiet means to be cool or to be calm. So they are just opposite words, they are just opposite feelings, but the poet used these two opposite words together. That's why we can see the use of oxymoron here in this line. Clear? So ये होता है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। so हमने पहले पढ़ा था कि जो पोइट है उन्होंने इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया है, दो डिफरेंट सिचुएशन है, दो डिफरेंट सिनेरियो उन्होंने हमें दिखाए हैं। एक तरफ एक टाइगर जो कि जू में है, और सेकंड तरफ एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट, अपने जंगल फॉरेस्ट में वो मूव कर रहा है। तो जो हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था उसमें हमने देखा था देयर इज अ टाइगर दैट इज केप्ट इन अ cage, that is kept in the zoo. Now in the second stanza he is describing about a tiger that is there in the jungle. Okay, so the poet is saying that he should be lurking in shadow. What is lurking? Lurking means remaining hidden, or we can say to hide. तो poet कह रहे हैं कि केज में मूव करने की बजाय, या फिर हम कह सकते हैं कुछ थोड़े से ही स्टेप्स मूव करने की बजाय, एक टाइगर को एक्चुअल में क्या करना चाहिए, उसे जंगल में रहना चाहिए, और जंगल में उसको लर्किंग यानी उसको अपने आप को हाइड कर लेना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कहाँ, जो लॉन्ग ग्रास है जंगल में, जो लंबी लंबी घास है, उस घास की जो शेडो होती है, उस शेडो में टाइगर को अपने आप को हाइड कर लेना चाहिए। और ऐसा पॉइंट ने क्यों कहा है, सो हम सबको पता है जो टाइगर्स होते हैं वो जब जंगल में रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में जब वो रहते हैं, तो हम सब ने, आपने देखा होगा डिस्कवरी
डिस्कवरी चैनल पे पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, ये जो टाइगर्स होते हैं जब वो हंट करते हैं, जब वो शिकार करते हैं तो कैसे करते हैं, वो बिल्कुल छुप जाते हैं और अपने प्रे का वो वेट करते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ अब बिल्कुल सही मौका है, तब सडनली वो पाउंस करते हैं, वो अपने प्रे के ऊपर वो जंप करते हैं। तो वही चीज़ पॉइंट यहाँ पे रेफर करते हुए कह रहे हैं कि एक टाइगर को केज में बंद होकर रहने की बजाय एक जंगल में रहना चाहिए, फ्रीली रहना चाहिए, और क्या करना चाहिए, जो जंगल में लॉन्ग ग्रास हैं, जो शैडो है, उनके पीछे टाइगर को अपने आप को हाइड कर लेना चाहिए और उसको वेट करना चाहिए। वहाँ पे जो वाटर होल है, वाटर होल यानी जंगल में जितने भी पानी पीने के लिए सब एनिमल्स आते हैं, कोई छोटा सा पॉन्ड होगा, इस तरह का कोई भी वाटर बॉडी तो जंगल में है, वहाँ पे टाइगर को वेट करना चाहिए। किसका? प्लम डियर का। अब टाइगर का सबसे फेवरेट प्रे कौन होता है? डियर होता है। और डियर भी कैसा होना चाहिए? प्लम। प्लम मीन्स हेल्दी और वी कैन से फैट। ओके, तो पॉइंट कह रहे हैं कि टाइगर को जो उसका नेचुरल बिहेवियर है वो एक शिकार करने के लिए ही पैदा हुआ है टाइगर। सो टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर इज अ बीस्ट। ओके, जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है, तो ये उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। तो टाइगर को अपने नेचुरल बिहेवियर को ही फॉलो करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, उसे जंगल में रहना चाहिए, एंड ही शुड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, बिहाइंड द शैडो, एंड देयर ही शुड वेट फॉर अ फैट डियर, फॉर अ हेल्दी डियर, दैट द डियर शुड पास from that side. Why? Because deer will go to the water hole to drink water, so the tiger should wait there for the plum deer, and when he saw that okay this is the right opportunity, then he should jump, then he should pounce on his prey. Okay, तो इस तरह से उसे जंगल में रह के शिकार करना चाहिए, क्योंकि यही नेचुरल बिहेवियर होता है वाइल्ड एनिमल्स का, बीस्ट का। टाइगर के लिए यही सही है, यही उसका नेचुरल बिहेवियर है। ओके, सो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टाइगर एक्चुअल में किस लिए बने हैं, किस तरह के वो एनिमल्स होते हैं, उनका नेचुरल बिहेवियर क्या होता है, वो डिस्क्राइब करते हुए पॉइंट हमें कह रहे हैं कि हमने ह्यूमन बींग्स ने टाइगर को, हमने पढ़ा फर्स्ट स्टैंजा में कि किस तरह से हमने टाइगर्स को एक केज में बंद करके रख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और टाइगर्स के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो शिकार करने के लिए, जंगल में रहने के लिए ही बने हैं, और वही उनका एक नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल बिहेवियर है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें करना चाहिए। और जंगल में उन्हें डियर का हंट करना चाहिए, डियर का उन्हें शिकार करना चाहिए, और किस तरह से ग्रास के पीछे छुप के उनको वेट करना चाहिए, और जब बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए तब उन्हें जंप करके शिकार कर लेना चाहिए। ओके, so here in the second stanza again we can see some literary devices. First, as we have discussed earlier, that the rhyme scheme will continue same throughout the poem. So again we will see one more time. So shadow, we will mark shadow as A, grass we will mark B, hole is C, and pass and grass, yes, they are having similar sound, so pass will be again B, right? So the rhyme scheme of this stanza will be same, A, B, C, B. So throughout the poem, in all these stanzas, the same rhyme scheme is there. We will see the same rhyme scheme, that is A, B, C, B, right? Now one more literary term that we can see here is, okay, here plum and pass. प्लम, पास, जो दोनों ही वर्ड्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग साउंड है दैट इज सेम। सो दिस लिटरेरी टर्म वी हैव रेड अर्लियर, दिस इज एलिट्रेशन। This literary term is known as alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of the same consonant sound. Okay, तो दोनों ही words है plum and pass, इनकी जो starting sound है वो same है, same consonant sound जो है वो repeat हुई है, तो यहाँ पे literary device जो है वो use की गई है, उसका नाम है alliteration. Okay, आगे देखते हैं next third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Okay, so now again in this stanza the tiger is there in the jungle. So अब poet क्या कह रहे हैं? Poet कह रहे हैं कि टाइगर को जंगल में रह के, अपने नेचुरल हैबिटेट में रह के और क्या करना चाहिए? तो poet कह रहे हैं कि टाइगर को जो हाउसेज हैं उसके आसपास क्या करना चाहिए? स्नर्ल करना चाहिए. What is snarl? Snarl means make
मेक एन एंग्री साउंड और वी कैन से टू ग्राउल और टू रॉर। ओके, जो टाइगर्स की नेचुरल आवाज़ होती है ना, तो पॉइंट कह रहे हैं कि टाइगर को अपनी नेचुरल आवाज़ जो है वो निकालनी चाहिए। और कहाँ? घरों के पास में। अब घर कहाँ से आए? जंगल में। एट द जंगल्स एज, तो जो जंगल के एज पे, जंगल के किनारे पे जो घर बन गए हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अगर वो जंगल में रहे, तब भी हम ह्यूमन बींग्स की वजह से हम वहाँ भी उनकी लाइफ को इंटरफेयर कर रहे हैं, हम वहाँ भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी पॉपुलेशन डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए कम पड़ते जा रहे हैं। सो हमने क्या स्टार्ट कर दिया है? वी आर कटिंग द फॉरेस्ट। हम बहुत ज़्यादा जो है हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और हम अपने गाँव, अपने घर हम बसाते जा रहे हैं। कहाँ? जंगलों की तरफ। ओके, तो हम जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है? जो जंगल है वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए अब कम पड़ने लगे हैं। तो ऐसे में वाइल्ड एनिमल्स अब मजबूर होते जा रहे हैं कि वो कहाँ आए? वो उन गाँवों की तरफ आए जो गाँव एक्चुअल में वहाँ बना दिए गए हैं, जो कि जंगल था। राइट? तो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हम ह्यूमन बींग्स एक तो क्या कर रहे हैं? टाइगर्स को जंगल से उठा के हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम उन्हें जू में रख देते हैं, केज में बंद कर देते हैं। और सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं? हम उनका जो नेचुरल घर है, उनका जंगल है, हम वहाँ भी उनको परेशान कर रहे हैं, वहाँ भी हम उनको इंटरफेयर कर रहे हैं, वहाँ भी हम अपने घर, अपने गाँव हम वहाँ बसाते जा रहे हैं। इसकी वजह से उनका जो घर है वो उनके लिए कम पड़ने लगा है, छोटा पड़ने लगा है। इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स अब फोर्स हो जाते हैं कि वो गाँवों की तरफ आए। वो गाँव जो कि बिल्कुल जंगल के एज पे बने हुए हैं, जो कि एक्चुअल में जो जंगल का ही पार्ट है, जहाँ हमने ज़बरदस्ती वहाँ गाँव बना दिए, तो इसीलिए वो फोर्स होते हैं वहाँ आने के लिए। ओके, तो वही बात पॉइंट यहाँ रेफर करते हुए कह रहे हैं कि जो टाइगर है उसे जंगल के एज पे जो घर बने हुए हैं वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाके उसको अपनी वो स्नर्लिंग वॉइस में उसको वहाँ पे बोलना चाहिए। अपनी आवाज़ जो है, उसकी जो रॉरिंग साउंड है, जो उसकी ग्राउलिंग साउंड है, वो उसे वहाँ निकालनी चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसे क्या करना चाहिए? अपने वाइट फैंग्स को, फैंग्स क्या होता है? फैंग्स होते हैं जो शार्प टीथ होते हैं। तो यहाँ इन द पिक्चर आप देख सकते हैं, these teeth are known as fangs. So poet is saying that he should go to the villages that are there at the jungle's edge, and there he should make the snarling sound. He should show his white fangs. Bearing means to expose or to show something. Okay, so he should expose his white fangs, his claws, and he should terrorize the villagers. Okay, तो पॉइंट कह रहे हैं कि उसको वहाँ जंगल के पास जो गांव बने हुए हैं वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाके उसको अपने वाइट फैंग्स दिखाने चाहिए, अपने क्लॉज दिखाने चाहिए और जो स्नर्लिंग साउंड है वो उसको करनी चाहिए। और इस तरह से जो विलेजर्स हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से टेरराइज कर देना चाहिए, डरा देना चाहिए। और वो विलेजर्स वहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि वो वहाँ पे हैं जो कि एक्चुअल में टाइगर का घर है, जो जंगल है वो वहाँ तक उन्होंने अपने गाँव बना लिए हैं, तो इसीलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए टाइगर को और वहाँ विलेजर्स को डरा देना चाहिए, उनको टेरराइज कर देना चाहिए अपने फैंग्स के द्वारा, अपने क्लॉज के द्वारा, एंड विद द स्नर्लिंग साउंड। ओके, so here in this third stanza again the tiger is there in the jungle, he is in his natural habitat. Okay, but the poet is saying that we human beings, we are causing problems, we are creating troubles even there in their natural habitat. Why? Because our population is increasing day by day, and because of that we are cutting the forest, deforestation is there, and we are developing our villages there. Okay, that's why the wild animals are forced to come to our village. तो वो ऐसे ही नहीं आते हैं हमारे विलेज में, हम उन्हें फोर्स करते हैं क्योंकि हमने उनके एरिया में जाके अपने विलेज वहाँ पे हमने डेवलप कर लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे भी अगेन हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख सकते हैं। सो राइम स्कीम इज द सेम दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, द सेम राइम स्कीम इज देयर, A B C B. one more literary term that we can say here, this word is snarling. Snarling is a sound word. Sound word means the word that represent some sound. तो snarling क्या होती है? जो टाइगर्स की ग्रॉलिंग साउंड होती है, रॉरिंग साउंड होती है, दैट इज स्नर्लिंग। सो ये एक साउंड वर्ड है। तो जब भी इस तरह के साउंड वर्ड पोइट्री में यूज किए जाते हैं, दैट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज नोन एज ओनोमोटोफिया।
ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ ओनोमेटोफिया हियर, क्योंकि स्नर्लिंग क्या है, एक साउंड वर्ड है. सो जब भी इस तरह के साउंड वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो वो लिटरेरी डिवाइस बनती है ओनोमोटोफिया. ओके, और जो राइम स्कीम है वो सभी स्टेंजास में सेम है. राइट, आगे देखते हैं. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So अब वापस से पोइट्री में हम कहाँ आ गए हैं, फिर से हम उस टाइगर के पास आ गए हैं जो कि कहाँ है, डेट इज देयर इन द जू, डेट इज केप्ट इन अ केज. सो अब पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में हमें क्या बताया था कि he should move freely in the jungle, he should hide behind the long grass, he should hunt the deer and he should terrorize the villagers. ये हमने पढ़ा था in the second and third stanza, where the tiger is free, where the tiger is there in his natural habitat. But again in the fourth stanza the tiger is again in the zoo in a cage. So poet कह रहे हैं but ऐसा करना तो चाहिए, और टाइगर को उसको फ्रीली मूव करना चाहिए, डियर को हंट करना चाहिए, विलेजेस में जाके विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा. वाई? बिकॉज ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. वो एक सेल में बंद है, वो एक केज में बंद है, एंड दैट केज इज कॉन्क्रीट, दैट इज सॉलिड, दैट इज सीमेंटेड, दैट इज मेड ऑफ सीमेंट. ओके, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहा बिकॉज ही इज नॉट फ्री, हिज फ्रीडम हैज बीन स्नैच्ड फ्रॉम हिम एंड ही इज लॉक्ड इन अ सेल, ही इज लॉक्ड इन अ केज, दैट इज सीमेंटेड केज. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, दैट्स वाई हिज स्ट्रेंथ ऑल्सो इज बिहाइंड बार्स. उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी लॉक कर दी गई है बार्स के पीछे, उस केज के पीछे. तो ऐसा नहीं है कि टाइगर में अब स्ट्रेंथ नहीं है, ही इज हैविंग द सेम स्ट्रेंथ, ही इज हैविंग द सेम वाइट शार्प फैंग्स, ही इज हैविंग द सेम क्लॉज, ही इज हैविंग द सेम रॉरिंग साउंड, बट उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है दैट इज ऑल्सो लॉक्ड अप बिहाइंड द बार्स. तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इस प्रिजन में लॉक कर दी गई है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, दैट्स वाई ही इज स्टॉकिंग, ही इज वॉकिंग. कहाँ तक चल पा रहा है वो सिर्फ उस लेंथ तक चल पा रहा है जो लेंथ उस केज की है. तो अब उसके पास चलने के लिए सिर्फ वो लिमिटेड एरिया है, जितना बड़ा वो केज है सिर्फ उतना ही स्पेस ही इज हैविंग विथ हिम, दैट्स व्हाई ही इज वॉकिंग ऑन दैट लिमिटेड स्पेस. इग्नोरिंग विजिटर्स, और इसीलिए जो विजिटर्स वहाँ पे आते हैं, विजिटर्स जो कि जू जाते हैं टाइगर्स को देखने के लिए, तो जो पीपल वहाँ पे आ रहे हैं टाइगर्स को देखने के लिए वो विजिटर्स हो गए, तो वो विजिटर्स को इग्नोर करता है. इग्नोर मतलब वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता. उसके पास स्ट्रेंथ तो है, अगर वो चाहे तो वो अपने फैंग्स दिखा सकता है, अपने क्लॉज दिखा के अपना एंगर शो कर सकता है, स्नर्लिंग साउंड कर सकता है, उन सबको टेरराइज कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता. वो इतना ज़्यादा होपलेस हो चुका है टाइगर, इतना ज़्यादा अपसेट है वो कि वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है विजिटर्स को. जो लोग आ रहे हैं उसके केज के पास तक आ रहे हैं उसको देखने के लिए, उनको भी वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, कैसा भी एक्सप्रेशन वो नहीं देता. इतना ज़्यादा वो टाइगर अपसेट है, वो दुखी है. ओके, तो पॉइंट अगेन हमसे वो कहना चाह रहे हैं कि टाइगर का जो नेचुरल बिहेवियर है वो तो हमने पढ़ा सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में. वो टाइगर एक्चुअल में टाइगर वैसा होना चाहिए, उसको वैसी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, लेकिन हमने उसे क्योंकि एक जू में एक केज में हमने बंद कर दिया है, तो टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ भी उस वहीं पे लॉक होके रह गई है. वो टाइगर एक तरह से भूल चुका है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ भी लॉक हो गई है, वो भी बिहाइंड द बार्स उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लॉक हो चुकी है, और उसके पास चलने के लिए वो एक लिमिटेड एरिया है जो केज है, अब बस वही उसका घर है. टाइगर जो कि एक वाइल्ड एनिमल है, फ्री एनिमल है, जो कि पूरे जंगल में वो रन कर सकता है, वॉक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एक छोटा सा केज उसको दिया हुआ है, उसी केज में वो इधर से उधर वॉक करता रहता है, और वो इतना ज़्यादा अपसेट है, वो अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस जो है बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता. जो विजिटर्स आते हैं वो उनको भी टोटली इग्नोर करता है. ही इज़ नॉट रिएक्टिंग, ही इज़ नॉट showing his real emotions or his feelings, right? So in this stanza again we can see some literary devices. Rhyme scheme we have discussed, it is the same rhyme scheme here also, and one more literary device is there, behind and bars. Okay, so these two words behind bars, again ये दोनों ही words they are starting with the same sound, so this is the literary term known as alliteration.
सो अलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. सो यहाँ पे भी बिहाइंड और बार्स दोनों ही वर्ड्स के स्टार्टिंग में सेम साउंड जो है वो रिपीट हो रही है. सो दिस इज द यूज ऑफ अलिट्रेशन हेयर. ओके, नेक्स्ट सी द लास्ट स्टेंज ऑफ द पोम. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि वो टाइगर डेट इज देयर इन द जू, डेट इज केप्ट इन द जू, वो क्या कर रहा है, वो जो रात को लास्ट वॉइस वो सुनता है वो किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स की होती है. पेट्रोलिंग कार्स आप यहाँ हियर इन द पिक्चर यू ऑल कैन सी, दिस इज द पेट्रोलिंग कार्स डेट इज यूज्ड टू सिक्योर एनीथिंग, दैट इट इज यूज फॉर द सेफ्टी. तो ये जब सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इस तरह की कार्स का यूज किया जाता है जिसपे कलरफुल लाइट्स होती हैं, सायरन होता है. सो इस तरह की कार को कहते हैं पेट्रोलिंग कार्स. तो जू में भी रात के समय एक कार जो थी वो राउंड लगाया करती थी देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है ना, हर चीज को चेक करने के लिए. सो वो जो उसकी सायरन की आवाज आया करती थी, दैट वाज द लास्ट थिंग दैट द टाइगर यूज टू हियर एट नाइट. सो पॉइंट अगेन वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो बताना चाह रहे हैं कि अगर टाइगर फ्री होता, जंगल में होता, तो रात भर भी जो जंगल में आवाजें आती रहती हैं, अलग अलग जानवरों की अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं वो सुनता. लेकिन यहाँ पे जहाँ उसको जू में बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो लास्ट आवाज रात को सुनता है वो क्या होती है, पेट्रोलिंग कार्स के सायरन की आवाज होती है. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो क्या करता है रात को टाइगर अपनी ब्रिलियंट आई से, ब्रिलियंट में शाइनिंग, ओके वी कैन से स्पार्कलिंग. सो हम सबको पता है जितनी भी कैट फैमिली, टाइगर इज ऑल्सो फ्रॉम द कैट फैमिली, तो जो कैट्स होती हैं उनकी जो आईज होती हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, स्पेशली अंधेरे में, डार्कनेस में उनकी आईज बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं. तो अपनी उन्हीं शाइनिंग आईज से वो क्या करता है, वो स्टेयर करता है स्टार्स को, उन स्टार्स को जो स्टार्स भी कैसे हैं, शाइनिंग है. तो जो स्टार्स हैं, द स्टार्स आर ऑल्सो शाइनिंग एंड द आईज ऑफ द टाइगर इज ऑल्सो शाइनिंग. सो टाइगर अपनी शाइनिंग आईज से उन शाइनिंग स्टार्स को सब स्टेयर करता है और बिल्कुल होपलेसली वो अपने केज में बैठा रहता है. सो पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है उसके पास और कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से होपलेस हो चुका है और वो सिर्फ स्टार्स को देखता रहता है. स्टार्स को देख देख के वो सोचता रहता है कि स्टार्स फ्री हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं, स्टार्स फ्रीली अपने स्काई में वहीं हैं. लेकिन टाइगर फिर अपनी खुद की कंडीशन सोचता है कि वो यहाँ पे कैद होके रह गया है, वो कहाँ जंगल में रहता था, फ्री रहता था, जैसे चाहे वैसे मूव करता था, वो शिकार भी करता था, हर अपना नेचुरल बिहेवियर जो होता है वो किया करता था. लेकिन यहाँ पे उसे कैद कर दिया गया है, उसे इस पिंजरे में, इस जू में लाके बंद कर दिया गया है. तो बिल्कुल होपलेस हो चुका है और वो सिर्फ स्टार्स को देखता रहता है और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता है. और रात भर उसको सिर्फ पेट्रोलिंग कार की जो थी आवाज़, वो लास्ट आवाज़ थी जो कि उसको रात में सुनाई देती है. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेंज ऑफ द पोएम. So here again we can see some literary devices. Rhyme scheme is the same that we have discussed earlier. One more device is here. He hears, again this is the repetition of the same consonant sound, so the use of alliteration can be seen here in this stanza, in this line, he and hears. Okay, so the poem completes here. It's a very beautiful poem, very simple poem, but it is having a very great message. Okay, so message जो है poet का, जो इस poem की theme है, जो central idea है poem का, वो क्या है, poet ने यहाँ पे contrast present किया है. एक तरफ टाइगर अपने natural habitat में है, जंगल में है, जहाँ वो फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है. लेकिन बट ऑन द अदर साइड अ टाइगर इज देयर दैट इज केप्ट इन द जू, दैट इज फोर्स्ड टू लिव हिज लाइफ इन अ केज. ओके, तो तब उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, उसका नेचुरल बिहेवियर जो है वो तक चेंज हो जाता है, वो अपनी स्ट्रेंथ तक खो देता है, वो इतना होपलेस हो जाता है. सो ए कॉन्ट्रास्ट इज देयर एंड अ मैसेज इज देयर फॉर अस दैट वी ह्यूमन बींग्स वी जस्ट फॉर आवर फन, हम किसी की फ्रीडम छीन लेते हैं, हम उसको फोर्स कर देते हैं प्रिजन में रहने के लिए, केज में रहने के लिए, जबकि वो बने किस लिए हैं, फ्रीली जंगल में मूव करने के लिए. ओके, तो ये हमारे लिए मैसेज है कि हमें अपने फ़न के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें उस टाइगर की फीलिंग्स को फील करके देखना चाहिए कि वो टाइगर कैसा फील करता होगा, क्योंकि जंगल में से यहाँ लाके, जू में लाके, केज में लाके उसको बंद कर दिया गया है. ओके, सो आई होप द पोएम इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल द एक्सप्लेनेशन एंड द लिटरेरी डिवाइसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड इज everything is very much clear to you all. So in the next video we will see the comprehension part, we will solve the questions. So see you in the next video. Thank you.